ఓకే. సో, ఈరోజు మురళీ బాబాది, అవ్యక్త బాప్దాదాది మనందరికీ తెలుసు. అవ్యక్త మహావాక్యాలంటేనే చాలా ధారణాయుక్తంగా బాబాది క్లాస్ మురళి ఉంటుంది. అండ్ ఈరోజు బాబా కొంచెం చాలా అంటే గుహ్యంగా చెప్పాడు. అంటే అది అర్థం చేసుకోవడానికి నేనే ఇంకా మనల్ని చింతన చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లో చాలా రహస్యం ఉన్నట్టు. ప్రతి ఒక్క మాటకి బాబా చాలా డీప్ గా అర్థాలు చెప్పినాడు. దాని బాధ్యత మన మీద ఎలా ఉంటుంది, మనం ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అన్నది బాబా స్పష్టత చేసినాడు అనమాట. బాబా మనకు చాలా పెద్ద స్వమానం ఇచ్చినాడు. ఏం స్వమానం ఇచ్చినాడు అంటే మనమే విధి విధాత అన్నాడు బాబా. విధి విధాత అన్నది మామూలు స్వమానం కాదు. అది ఒక విధానాన్ని డిజైన్ చేసేటటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఒక దేశాన్ని నడిపించాలి అంటే కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ ని డిజైన్ చేస్తారు. ఆ లాస్ కి అబైడ్ అవుతారు, అంటే దాన్ని ఫాలో చేస్తారు అన్నమాట. అదే విధంగా బాబా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలు, ఎంతమందికి సిద్ధాంతము అంటే తెలుసు, అర్థమవుతుంది? సిద్ధాంతము అంటే ఉన్నాయా లేదు? నియమాలు వేరు, సిద్ధాంతాలు అంటారు. అంటే ఒక పద్ధతి ఒక పద్ధతి ప్రకారం, పద్ధతి ప్రకారం అది మార్పు ఉండదు అనమాట. ఆ పద్ధతిలో ఎప్పుడూ మార్పులు చేర్పులు జరగదు. అది లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఉన్నంత వరకు, సృష్టి ఉన్నంత వరకు. ఇప్పుడు సూర్యుడు తూర్పు నుండే ఉదయిస్తాడు, పడమర ఏం చేస్తాడు, అస్తమిస్తాడు. ఇది ఒక ఫిజికల్ ఒక లా అన్నమాట, ఒక పద్ధతి. అంటే ప్రకృతిలో ఇది ఒక పద్ధతి తయారయ్యింది. సో దానికి మనం వ్యతిరేకించలేము కదా, దాన్ని అనుకూలించి మనం నడుచుకుంటున్నాం. అదే విధంగా అది ఒక లా అన్నమాట. కానీ సిద్ధాంతం అన్నది ఒక ప్రిన్సిపల్ కింద, అంటే ఇంకా నాకు అది తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ తెలియదు, కానీ అది ఒక ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. అంటే దాని బేసిస్ మీద ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక 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 ఉంది, వీళ్ళ సిద్ధాంతం ఇది, వీళ్ళ సిద్ధాంతం ఇది అంటే ఇది వీళ్ళు ఇలా చెప్పినారు, దాని మీద నడుచుకుంటే మనకు దాని నుండి ఎన్నో ప్రాప్తులు ఉంటాయి. అంటే అదొక ప్రిన్సిపల్ అనమాట, ఒక లా అనొచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు. కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ నాకు తెలియదు. కానీ బాబా ఈరోజు సిద్ధి అండ్ సిద్ధాంతము, విధి ద్వారా సిద్ధి చాలా చాలా డీప్ గా చెప్పినాడు బాబా. ఈరోజు 12/9/2021, అండ్ రివైజ్ వచ్చేసి 19/3/88. तो कौन सी मुरली है ये? 19 मार्च 1988 की रिवाइज कोर्स है। 19 मार्च 1988 की है और आज की डेट 12 सितंबर 2021। तो मुरली में बाबा ने क्या कहा? आज याद में रमणीकता लाने की युक्तियां है ना। कहां से सुन रहे हो? मधुबन से और आदिलाबाद, रेवती दीदी, हाँ रेवती बहन के सेंटर से। देखो बहुत समय से कह रही थी, हमने कहा रविवार को ठीक है, सभी को खाली भी होते हैं, तो सभी मधुबन से मुरली सुन सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा याद में बैठते हो, बाबा को अमृत वेले शाम को जब भी योग करने बैठते हो तो उसके अंदर रमणीकता लाने के लिए बाबा युक्ति बताता है। आज विधाता वरदाता बाप दादा, बाप कौन है? विधाता, विधि बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या प्राप्ति होती, क्या प्राप्ति नहीं होती है। तो विधि बताने वाला, जैसे मेडिकल स्टोर में दवाई मिलती है लेकिन डॉक्टर बताएगा ये सवेरे लेना या शाम को लेना। जो विधि वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं बताएगा, दवाई ले लो वो डॉक्टर से पूछो। तो भगवान सुप्रीम सर्जन है। सारी दुनिया ने कहा भगवान को सारी दुनिया याद करती है,
लेकिन बाबा ने विधि बताया। कौन सी विधि? अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान को भाग्य बनाने वाला, पतित आत्मा को पावन करने वाला, उसके लिए विधि बताता है। ये विधि भूलना नहीं। फिर वरदाता है, वरदान देता है, शक्ति देता है। वरदान माना शक्ति देता है। बाप दादा अपने मास्टर विधाता। कौन मास्टर विधाता? हम बच्चे। विधाता के बच्चे मास्टर, मालिक, मास्टर विधाता है ना। बाप ने जो हमको विधि बताई, हमने सुनी, हमने भी किया, औरों को भी बताते हैं। माँ और वरदाता, बाप हमें वरदान देता है, और बाबा के जो वरदान प्राप्त कर, अनुभव कर, औरों को भी वरदान देने वाले मास्टर वरदाता। बच्चों को देख रहे हैं, जो बाबा का करते हो वो बच्चों का करते हो, तब कहते हैं सन शोस फादर। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो। हर एक बच्चा, पूछ लो, हम बाबा के अगर बच्चे हैं तो विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, बच्चे कितने वैल्यूएबल हैं। जितना बाप की विधि विधान को अपनाते हो और औरों को जितना सुनाते हो, उतना आपका मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। साधारण ब्राह्मण नहीं है, संगम युग और भगवान की रचना है। भगवान के द्वारा शिव बाबा ने स्वयं आकर विधि भी बताई और विधि को यूज करने के लिए शक्ति भी, वरदान भी दिया है। इसलिए विधाता और वरदाता दोनों। तो ये संगम साउंड नहीं आ रहे। भाई जी आपकी म्यूट हो। सारे कल्प का आधार है। संगम युग जो सारे कल्प का आधार है। ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता और वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। हर एक बच्चों को विधि बताओ। सिर्फ याद करो, योग करो, इतना ही नहीं, कैसे करो और ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, कमेंट्री सुन के योग करने से क्या होगा, गीत सुन करके योग करने बैठे तो क्या होगा। और बाबा ने जो विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो मेरे सर्व शक्तियों से विकर्म विनाश होते हैं। हम भगवान को, शिव बाबा को क्यों याद करते हैं? विकर्म विनाश करने के लिए। आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। अभी जो कुछ ब्राह्मण करते हैं ये भविष्य में आधा कल्प के बाद द्वापर युग में भी इसी विधि के अनुसार त्योहार, पूजा, सब कुछ होता है, गायन, कीर्तन। भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्म की विधि, ये श्रेष्ठ कर्म क्यों हुआ कि श्रेष्ठ बाप ने आके सिखाया है। किसी मनुष्य आत्मा ने नहीं सिखाया, किसी साधु संत किसी के नहीं, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वोत्तम सुप्रीम फादर वो स्वयं आके सुनाता है। इसलिए ये श्रेष्ठ विधि है। आप पूछेंगे श्रेष्ठ क्यों? कारण है।
तब बता श्रेष्ठ कर्म की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूछ रूप में भी इस समय की ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ये आदिलाबाद ही नहीं, करीमनगर के भी बच्चे इसमें बैठे हैं। करीमनगर और आदिलाबाद दोनों क्लास है। करीमनगर भी है। ओके, या आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने सॉरी बीच में आपको रोका मैंने। करीमनगर से भी है, आपका वेलकम है करीमनगर में भी। हाँ, आपने कुछ किया ही नहीं, तब चलो बाद में करो। मुरली समय हो गया, समय को देखेंगे ना। आपने किसी ने आवाज ही नहीं किया, गीत भी बजाया। तो श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। भक्ति मार्ग में भी विधि है, दोनों चलती है। ये नीति भी और रीति भी, सिस्टमेटिक, ऐसे नहीं काम चलाओ नहीं, नीति पूर्वक, नियम मर्यादा पूर्वक। उसके के देखो पवित्र रहते हैं। सवेरे स्नान करके बहुत श्रद्धा भावना से सफाई करेंगे, पवित्र रहेंगे। कहां से हर प्रकार के फूल लेके आएंगे, सब नीति नियम मर्यादा सब पालन करते हैं। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी है। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। ये मूल सिद्धांत है। क्यों? कि मूल कौन है? एक सत्यम शिवम सुंदरम, आदि है, ओरिजिनल है, अविनाशी है, सनातन है, वो मूल है। तो वो आकर के हमें ये विधि विधान बताता है, इसलिए अविनाशी है। आपके मूल सिद्धांत, कौन सा मूल सिद्धांत? ये भूलना नहीं। ब्रह्मा कुमारी में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये मूल सिद्धांत है, अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद कर। अभी आप सोचना, आत्मा कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? मैं आत्मा इतना ही नहीं, कम से कम किसी को पूछेंगे आत्मा कौन सी आत्मा है? पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा? अपने आप से पूछो। तो मन बुद्धि से पूछता है, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, है ना? अभी आपको पता नहीं था कि मुरली सिर्फ आदिलाबाद ही नहीं सुन रहा है, तो करीमनगर भी सुन रहा है, जहां विजय बहन रहती है और उनका भाई विजय भाई है, रशिया में है। रशिया का सेवा के निमित्त है। तो देख, करीम जैसे क्या होता है, आइसक्रीम, है ना? तो करीम आइसक्रीम जैसे मिठास भी है, मुलायम भी है, बहुत स्वीट भी है। तो इसलिए तो ये परिचय चाहिए, आत्मा कौन है, कौन सी आत्मा है? पापात्मा, देवात्मा, महात्मा। फिर मेरा रूप कैसा है? बाबा ने कहा, बहन जी ने भी बताया, क्या मैं इस रूप को स्वीकार करता हूं? कि किसी ने बिंदु कहा, किसी ने और कोई रूप कहा, किसी ने कहा सितारा जैसा है, किसने और कुछ अलग अलग रूप बताया है। तो मुझे विश्वास है, ठीक है, मैंने समझ लिया मेरा रूप क्या है, मेरे गुण कौन से हैं। हम बोलते हैं मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, फिर पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, अभी शांत स्वरूप हो नहीं, तो कैसे कहते हो फिर? ये मेरे गुण नहीं। हाँ, मेरे गुण थे सत्युग में, मैं जब था तब पवित्र था, तब शांत स्वरूप था, अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। तो मंत्र जैसे रिपीटेशन नहीं, तो मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। ये विधान है, ये सिस्टम है। तो ये मन और बुद्धि एकाग्र रहती है, इधर उधर भागती नहीं, नींद नहीं आती है,
व्यर्थ विचार में चलते हैं, है ना। योग में व्यर्थ विकल्प आने का कारण हम शिव बाबा ने जो विधि बताया, बच्चे मन बुद्धि को मेरे से जोड़ो। तो कैसे जोड़ेंगे? तो विधि है। मन पूछता है मैं कौन, समझ बुद्धि के अंदर है, सुनने के बाद समझ, और समझ से जवाब देता है। तब कहा आपके हर विधि, नीति व रीति में चलती आती है, तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। इससे सिद्धि मना प्राप्ति, अचीवमेंट। जैसे मूल सिद्धांत क्या है? बाप एक है, दो नहीं, भगवान दो नहीं। श्री राम भी है, श्री कृष्ण भी है, हनुमान भी है, नहीं, एक। सत्यम शिवम सुंदरम। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक ही है। लेकिन परम आत्मा एक ही है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा है, ये सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। भगवान आके कहते वो वर्षा देता है। क्या वर्षा देता है, कैसे देता है? इस विधि बताता है, ऐसे करो, और वरदान देता है, शक्ति देता है। विधि और विधान से, वरदान से अगर आप ये कर्म करते हो तो सब प्रकार की प्राप्तियां, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प के लिए गारंटी देता है, 21 जन्मों के लिए, है ना। सारे कल्प के लिए प्राप्ति कर सकते हो। अविनाशी है, देने वाला अविनाशी बाप है। तब कहा कि ये प्राप्ति थोड़े समय के लिए, प्राप्ति क्या है? हमारे वर्षा है, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। क्योंकि एक बाप है, बाप की महान आत्माएं व धर्म आत्माएं है, बाप नहीं है वो। बाकी सभी वो महान आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, लेकिन वो बाप नहीं है। भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो कहते इनको सिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात जो कुछ किया उससे प्राप्ति हुई। बीज बोया, फल प्राप्त हुआ, तो सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बन जाता है। अगर आपने अभी सबको स्पष्ट किया अच्छी तरह से, भगवान शब्द जो है एक ही है। अभी आप पूछेंगे कि कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, ये क्या है? तो वास्तव में एक ही है। भक्ति वाले जो भक्ति करते हैं वो भगवान शब्द यूज करते हैं। साधु संत जो है वो क्या करते हैं? ईश्वर कहते हैं। और जो योगी ज्ञानी वो लोग क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। बाप है, मात पिता है, इसलिए हम बाप दादा, मात पिता, परमात्मा शब्द यूज करते हैं, भगवान नहीं कहते हैं। तो ये भक्ति का शब्द है, जो भक्ति करने वाले वो लोग यूज करते हैं। जैसे मराठी में ये बोलते हैं, तेलुगु में ये बोलते हैं, कन्नड़ा भाषा में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं, ये भाषा है। यही सिद्धांत सिद्ध प्राप्त करने का आधार बन जाता है।
भक्ति का आधार भी एक बाप के शिवलिंग में, भक्ति में भी आदि में शिवलिंग रूप में आरंभ होता है। निराकार शिव बाबा का शिवलिंग बनाता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वहां दो नहीं था, मंदिर में, घर में एक ही शिवलिंग, कहानी दूसरा कुछ नहीं है। फिर व्यभिचारी बन गए, शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी रखने लगे, और किसी का शंकर का भी फोटो रखने लगे, शिव और शंकर के यहाँ। फिर पार्वती भी आई, फिर गणपति भी आया, फिर कार्तिकेय भी आया। ऐसे क्या हो गया, अलग अलग बढ़ता गया, संसार बढ़ता गया। तो अव्यभिचारी भक्ति, तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धांत क्या? एक शिव बाबा, एक विधि। मैं कौन? आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। ये है बाप है, ये बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे ये योग की सिद्धांत है, योग में बैठते हो, एक मैं आत्मा और एक बाप को याद करना है, ऐसे मूल सिद्धांत है। अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी इसमें आपने एडमिशन लिया, तो यहाँ सबसे पहले फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। शरीर और मन, आत्मा स्वच्छ, फिजिकल एंड मेंटल दोनों चाहिए। समझा? सिर्फ शरीर स्वच्छ है, मन में गलत विचार, गुस्सा, तो यानी मेंटल भी, आत्मा भी पवित्रता। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज है ना, देवताओं के ऊपर लाइट का ताज, स्पिरिचुअल क्लीननेस है। प्योरिटी कैसे दिखाएंगे? सोने का ताज है और पवित्रता का ताज भी है, ओरा कहते हैं आप उसको, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे, तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझ के समझेंगे और समझाते हैं। इसलिए देखो, मंदिर में जाना है, पूजा करना है, स्नान करके जाएंगे, पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, नए कपड़े, पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। श्रावण मास अभी आया था, उस श्रावण मास में भी पवित्र रहना है। कोई यात्रा पर जाना है, पवित्रता। शरीर भी, मन में आज क्रोध नहीं करना है, बुरे विचार नहीं करना है, कोई आवाज नहीं करना है, स्वच्छता ये मूल है। पवित्रता चाहिए। पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अभी देख लो, किसी के पास सिद्धियां नहीं है। जैसे आपके आंध्रा में सत्य साई बाबा था, पुटपत्री का, पवित्रता, कितनी पावर थी, चमक थी, चमत्कार थे। जहां पवित्रता है तो वो सारे चमत्कार रिद्धि और सिद्धि कहते हैं। तो बहुत सारे चमत्कार, लोगों को वो चमत्कार चाहिए, लेकिन उसके लिए पवित्रता चाहिए। भक्ति मार्ग में भी और यहाँ भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य फाउंडेशन है। नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं सकता है। तब का ब्राह्मण ही
भगवान के नजदीक जा सकता है। मंदिर में भी पूजा करने के लिए ब्राह्मण जाना चाहिए? कोई भी कर सकता है? नहीं, ब्राह्मण चाहिए, तो पवित्र है। अब आप पूछो, इसलिए मूर्ति बनाते हैं तो पवित्र ब्राह्मण भी पवित्र नहीं है, चैतन्य भगवान नहीं। अभी चैतन्य भगवान को याद करना चाहते हो, यहां भी अगर हमारे जीवन में आज पवित्रता नहीं है, गुस्सा किया है ना, गलत विचार, किसी शरीर के तरफ आकर्षण, अगर अपवित्रता है, आपका योग नहीं लगेगा। देखना, योग में बेटे नींद आएंगे, व्यर्थ विचार चलते इधर उधर, और योग में खुशी नहीं होगी, क्योंकि प्राप्ति नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो ब्राह्मण पवित्र रहता है, साफ स्वच्छ रहता है और पूजा करता है, उसको खुशी होती है, एक अथॉरिटी रहती है, मैं पंडित हूं, मैं पुजारी हूं, भगवान का राइट हैंड, भगवान मेरे हाथ में है, मैं जैसे कहूं वैसे भगवान मानेगा, उसको भी एक नशा रहता है। ऐसे किसी ने दिया कुछ खाएगा भी नहीं। हो नियम पर चलने वाले अभी भी पुजारी है। तब बाबा कहता है कि भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। वहां भी ऐसे है, चाहे अल्प काल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाए। भक्ति मार्ग में भी 1 महीना, 1 दिन, 1 मास वहां भी करता है, उतने समय ही पवित्रता को अपनाए। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। यहां भी कितना भी आप ज्ञान सुन लो, चाहे लाख करो चतुराई, कितनी मेहनत कर लो, नहीं, बुद्धि योग शिव बाबा से जुड़ता नहीं है। क्यों? बुद्धि स्वच्छ नहीं है। इसलिए भारत में भी ब्रह्मचारी के अंदर पढ़ाई है, 21 साल के अंदर पढ़ाई है, शादी से पहले पढ़ाई, पढ़ाई में बुद्धि का रोल है। ये भी पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। यहां भी पवित्रता अगर है, काम और क्रोध 2 मेन, सबसे पहले काम, फिर क्रोध, क्रोध और काम, ये 2 जल्दी अपवित्र करते हैं। अगर इसका अंश है हमारे अंदर, इसके कारण योग में बैठो नींद आती है, व्यर्थ विचार चलते हैं, योग लगता नहीं है, शिव बाबा से बुद्धि योग जुटता नहीं, अनुभव नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होती है। कारण ये सब है, इसको अच्छी तरह समझना। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य, अपनाना अवश्य है। इस प्रकार हर ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत, बुद्धि से सोचो, मूल सिद्धांत क्या चीज है ये, कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन है। अगर सिद्धांत पर चलते हो तो प्राप्ति है। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहती है, वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें देवता के रूप में पूजा करता है। गणपति के द्वारा अलग, हनुमान के द्वारा अलग प्राप्ति। कोई कि शनि की ग्रह है तो हनुमान की पूजा करेंगे, और कोई विघ्न है, गणपति विघ्न विनाशक है ना। हर एक के अलग अलग देवता, जिसके द्वारा जिसको धन चाहिए लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जिसको विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करेंगे, है ना। तो अलग अलग जिन्होंने जिसकी प्राप्ति किया संगम पर भगवान से, जैसे बाबा ने कहा आप कौन हो, बाप सर्वशक्तिवान, कौन सी शक्ति है, और आप मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पूछो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर माना बाबा की 8 शक्तियां, एक एक शक्ति के ऊपर आपने अधिकार प्राप्त किया है।
मास्टरी। तो अभी सर्व शक्तियों पर नहीं, कम से कम एक शक्ति के ऊपर। मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर आनंद के सागर शिव बाबा के मुख्य 8 शक्तियां हैं। इसलिए अष्ट रत्न गाए जाते हैं। सत्युग के विश्व महाराजन 8 है, तो उनके पास एक एक के पास एक एक शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान है, और जिसने सभी शक्ति प्राप्त किया वो मास्टर है, मालिक है, भगवान का राइट हैंड है। उन्हें देवताओं के पूजा करते, देवता समझते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि प्राप्त, सिद्धिदाता बनते हो, ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त बन जाते हैं। जिनको प्राप्त है, जिनको विधि पता है, उससे वो खुश है, उससे वो संतुष्ट है, उसको प्राप्ति हुई, तो दूसरों को भी आप बताएंगे इस विधि से, ये करने से ये प्राप्ति होती है। औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हो। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि मीन्स मेहनत, मेहनत से प्राप्त करने से नहीं, हट से नहीं। एक पांव पर खड़ा हो, फिर बिल्कुल पानी भी नहीं पीना, व्रत करना, निर्जल, ऐसे नहीं। विधि से सिद्धि है, विधि है। क्या विधि सुना है? पहले सुना है, आत्मा समझ, मुझे याद करो, शिव बाबा को। ये रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, थोड़े समय के लिए। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा जो शिव बाबा ने श्रेष्ठ विधि है, तो सिद्धि जो प्राप्त होती है वो ईश्वरीय विधि है, मनुष्य की नहीं। सिद्धि उस ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है, मनुष्य की नहीं, कोई साधु संत की नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा प्राप्त सिद्धि है, इसलिए अविनाशी है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वर की विधि सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि देने वाले स्वयं भी अल्प आत्मा है, अल्पज्ञ है, आत्मा है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल के लिए है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति, यथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। पहले हम स्वयं आधा कल्प सत्युग त्रेतायुग प्राप्ति करते हैं, इस सिद्धि के फल प्राप्त करते हैं। फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग, जो भक्ति मार्ग में भी जो आपने विधि से सिद्धि प्राप्त की है, वो विधि सुनकर तो वो भी पुरुषार्थ करते हैं यथाशक्ति। सब एक जैसे नहीं करते हैं, यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति अलग है। भगत आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने कारण यथार्थ सिद्धांत रहा ही नहीं है। इसके कारण सिद्धि भी नहीं है, विधि पूर्वक करते नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं, क्रोध मुक्त नहीं है, कोई नीति नहीं है,
स्वच्छता नहीं है, तब कहा जो सिद्धि होनी चाहिए, प्राप्ति, वो नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहो। इस स्वमान, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का संतान हूं, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा है। तो ये स्वमान, मैं कौन हूं, इस स्मृति की सीट पर हो। जैसे डॉक्टर अपने को डॉक्टर समझ के कुर्सी पर बैठता है, जो जज है जब कुर्सी पर बैठता है तभी, घर में नहीं है। तो कुर्सी पर बैठते ही ये सीट है, तब कहता है बाबा स्वमान के सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है, मास्टर सर्वशक्तिवान। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेंगे, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर साधारण स्थिति में आ जाते हो। जैसे योग में बैठते हो, श्रेष्ठ स्थिति की सीट क्या है वो, सोचो। हाँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, ये सीट है। अगर आप आत्मिक स्वरूप में जैसे भी योग में बैठते, पहले 10-15 मिनट आत्मा का चिंतन चाहिए। आत्म अभिमानी बनना चाहिए, अशरीरी बनना चाहिए, विदेही बनना चाहिए, वेही अभिमानी बनना चाहिए। अलग अलग नाम है, तो उसकी विधि बताया। बैठते ही पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, धीरे धीरे एक एक गुण याद करो। मैं कब पवित्र था, कब शांत स्वरूप था। मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, हाँ इन आंखों से इधर उधर देखता हूं। योग में बैठ के आंखें इधर उधर नहीं, मुख से बात नहीं करना है, हाथ पांव हिलाना नहीं, इंद्रियों जीत का, तब का विधेयी, शरीर को यूज नहीं करो। तो ये सीट है। पांचवा है, मैं कहां से आया, परमधाम, फिर योग। ये 5 प्रश्नों का चिंतन कम से कम 5-10 मिनट करते हो तो आप मन और बुद्धि पॉजिटिव हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्बंधन स्थिति में आते हो, शरीर के बंधनों से मुक्त होते हो। उसको अशरीरी कहते हैं, क्योंकि शरीर का चिंतन नहीं आता है। तो ये सीट पर सेट रहो। तो सीट कौन सा पूछेंगे आप, सीट ये अपसेट नहीं होंगे, अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। क्योंकि इधर उधर देखते हो, हिलते रहते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन गई है। साधारण याद में बैठो, गीत सुनते रहो, इधर उधर देखते रहो, कमेंट्री सुनते रहो, एक साधारण दिनचर्या हो गया। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ समान की सीट पर बैठो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। कोई ना कोई समान ले लो, उसका चिंतन करो। विधि है ये, मुख्य विधि आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड पर बिस्तर से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग स्थान होता है, कहीं भी बैठ के नहीं, खटिया पर भी बैठे, सोफा पर भी बैठे नहीं, योग स्थान है। कहीं भी सोते नहीं है, कहीं भी खाना नहीं खाते, खाने का टेबल स्थान, सोने का स्थान, योग करने का भी स्थान अलग होना चाहिए, साफ स्वच्छ।
जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हैं ना, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। बुद्धि कहाँ स्थित कर रहे हो? आत्मा के ऊपर पहले, मैं आत्मा हूं, फिर सीधा परम धाम में शिव बाबा पर। बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता जाएगा। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन, कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर बैठो हुए मास्टर, बीज रूप परम धाम में बीज रूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो जाओ। कभी अव्यक्त फरिश्ते सूक्ष्म तन में बाप दादा से रुझान करो। कभी विश्व कल्याणकारी सारे विश्व के आत्माओं को सकाश देना, स्थिति के सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर वह सीट पर सेट होकर बैठो। कभी सूक्ष्म तन में बाप दादा से रुझान करो। कभी बीज रूप स्थिति परम धाम में शिव बाबा के साथ सर्व शक्तियों का चिंतन करो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, कैसा है वो? मैं बाबा जैसे पवित्र कैसे बनूं? शिव बाबा शांति का सागर है, मैं कैसे बनूं? एक एक शक्तियों से चिंतन करो, कंपेयर करते रहो। तो ये बीज रूप स्थिति, सूक्ष्म तन में आओ, बाप दादा से रुझान करो। बाबा कल आपने ये कहा, इसका अर्थ क्या है? ये कैसा है? मुझे ये दुख है, ये समस्या है, क्या करो? हर प्रकार के रुझान करो। सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसे करेंगे कभी वैसे करेंगे। तो यह बुद्धि की हलचल में तब आते हो जब सीट पर सेट नहीं होते हो। जानते हो तो सब है कि हम यह है, जानते हैं, ज्ञान है, उसको यूज करने की विधि चाहिए। खाने के समय अलग, चलने के समय अलग, मुरली सुनते समय अलग, योग में अलग। जानते हो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो, तुरंत कहेंगे अपना नाम, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएंगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है। हाँ, मैं यहां हूं। लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं। चेकिंग भी चाहिए। कैसे करेंगे? हर घंटे लिखो कि मुझे ये याद है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। हाँ, 2 मिनट थी 7 से 8 बजे तक, फिर बिजनेस में लगे, फिर और बातों में आ गए। पर जाने 9 बजे लिखो, फिर से 9 से 10 अटेंशन दे दो, 10 बजे लिख दो, 9 से 10 बजे तक कितनी मिनट थी, ऐसे बूंद बूंद इकट्ठा करो। एकदम 1-1 घंटा पूरा नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे चलो। तो जानते हो लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गए। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। तो स्वयं भी है,
और दाता भी होंगे, औरों को भी अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे हर समय। नहीं तो योग करो, याद करो, इतना ही नहीं, कैसे करो। कोई चीज देते हो कैसे खाना है, विधि पूर्वक समझाना। जैसे डॉक्टर कोई गड़बड़ी में दवाई ऐसे दे देता है, कोई डॉक्टर विधि पूर्वक बताते हैं, ये सवेरे खाना, ये लाल गोली है, ये सफेद गोली है, ये पीली गोली है, शाम को खाना। भूल जाएंगे, इसलिए विधि बताता है। सिद्धिदाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्धि है, इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। अगर आप सिद्धि प्राप्त करने, योग में अच्छा अनुभव चाहिए, प्राप्ति करना चाहते हो, बाबा से ये सिद्धि चाहते हो, तो सीट पर सेट हो जाओ। सीट कौन सा? आत्म अभिमानी का सीट। क्योंकि आत्मा को प्राप्ति मिलती, शरीर के लिए नहीं। भक्ति में शरीर स्नान करेंगे, पीतांबर पहनेंगे, जैनिवार पहनेंगे, है ना, शरीर की है, आत्मा की नहीं है। तो वो शरीर की सिद्धि चाहते हैं। बच्चों को परीक्षा में पास करवाना चाहिए, लड़की की शादी होनी चाहिए, बिजनेस में और कुछ होना चाहिए, इसके लिए करते हैं। यहाँ आत्मा के लिए, तो आत्मा के सीट पर, रूहानियत की सीट पर सेट हो जाओ। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह है, कोई कहते हैं ना, वैसी नींद नहीं आएंगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएंगी। योग में बैठते ही देखो संगठन में, क्योंकि शांत वातावरण होता है, गहरी नींद आती है। थोड़े लोग कहते हैं आज अच्छा योग लगा, ये नींद को ही योग समझता है, कोई विचार ही नहीं तो नींद नहीं आती है। क्योंकि स्वच्छ वातावरण, शांत वातावरण चाहिए। लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, अनेक वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप में परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो तो देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के ऊपर में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दे दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। जैसे योग में बैठे, बाबा आपको देखता ही रहता हूं, आपके नयनों में हूं मैं, मेरे नयनों में आप हो, और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप भी दिखाई देते हो। आपका ही मैं चिंतन करता हूं, आपको ही देखता रहता हूं, आपकी शक्तियों के प्रति सोच रहा हूं, तो आप में समा गया हूं। तो ऐसे चिंतन करना है। भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो, तो रमणीकता आएंगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो,
पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटा 8 घंटा बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। इसलिए क्या कहा, सवेरे शाम को चार्ट नहीं लिखना है, हर घंटे चेकिंग करो कि 1 घंटे में मैंने क्या किया। अगर 1 घंटे में बेहोश हो गए और जाने दूसरे घंटे में खड़े हो जाएंगे। सारा दिन चला गया, रात को चेकिंग किया, चार्ट लिख के फायदा क्या, समय तो चला गया ना। इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व के आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? विश्व के आत्माओं का कल्याण करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, क्या करने से होगा? विधि विधान। आज मधुबन, अभी दूसरा, आज मधुबन वाले बाबा, मधुबन वालों का दिन है, बाबा मधुबन वालों से मिलने आया है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं क्योंकि विदेशियों को मिलना था, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हो, सुनते सुनते महान बन गए हो, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज, सारे विश्व के नजर है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर होता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएंगे तो इस हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, सारे विश्व की नजर है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व के स्टेज पर स्थित हो, है ना। कहाँ हो? मधुबन निवासी कहाँ होता है? विश्व को देखता है। देखो आज भी आपकी मुरली सिर्फ आदिलाबाद, करीमनगर इतना ही नहीं, हैदराबाद इतना ही नहीं है, सारे विश्व में गया है, जाता है। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोगों का डिमांड होती है सवेरे मुरली सुनाओ, लेकिन हम समझते हैं हमारे सवेरे का मुरली मिस होती है। बहुत कहते हैं, स्पार्क कॉलोनी भी कहा अमृत वेले योग कराओ, तो हमारा योग, मुझे लगा वो योग कराना तो कैमरे पर अटेंशन रहता है, तो उसके कारण वो योग नहीं हुआ, वो सेवा हुई, सेवा का फल मिलेगा। लेकिन हमारा योग तो मिस हुआ ना। अभी मुरली सुनाना और मुरली ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर है। तब कहा, बहुत समय कह रहे थे, हमने कहा योग के समय नहीं, अमृत वेले मुरली के समय नहीं, तो भी सारा विश्व देखता है, तो मधुबन से सुन रहे हो, है ना। तब बाबा कहता है तो मधुबन निवासी सदा विश्व के स्टेज पर स्थित हो। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है। गुंबज तो होता है ना, उसका आवाज अपने तरफ, अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान की निशानी मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। अगर आप लोगों ने सुना होगा
लखनऊ में है। एक जगह नीचे आवाज करो, कहां से कहां वो आवाज पहुंचता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानियां मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आवाज करेंगे, तो 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है ये, है ना। मधुबन में कुछ भी होता है सारे विश्व में एक सेकंड, क्योंकि विश्व का कनेक्शन है 130-140 देशों में। यहाँ कुछ भी होता है, हर सीन देखो। मधुबन में जो मुरली चलती है, दादी रतन दादी सुनाती थी, देखता था मैं 10,000 15,000 सारे विश्व के, तो सब सुनते 10 15 20,000। अव्यक्त बाबा जब आता है सारा विश्व देखता है। तो मधुबन का कनेक्शन है, ये विश्व की स्टेज है। सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्र है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहां देखा या यहां बोला, लेकिन जब बोलते हो यहां कुछ, मधुबन में सारा विश्व के कोने में पहुंचता है। हमको एक दिन किसी ने कहा, बहुत साल पहले, ऑस्ट्रेलिया का परिवार है, तो उन्होंने लिखा कि आप अपने को नहीं जानते हो, उससे भी ज्यादा हम आपको जानते हैं, लेकिन अभी तक मधुबन में आए नहीं, ना आपसे कभी मिले हैं। ये कैसे होगा बताओ। न हमसे कभी मिले, न मधुबन में आए, तो हमको लिखते हैं आप अपने आप को जितना नहीं जानते हो उससे भी ज्यादा बहुगुना हम आपको जानते हैं। आप सोचना, हर कर्म हर एक्टिविटी हर एक को पता होती है, हर एक जानता है। ऐसे अफ्रीका में एक भाई है, हमने कभी अपना जन्म तिथि किसी को नहीं बताया, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो हर एक साल बहुत सालों तक अभी भी बर्थडे के दिन ही मैसेज फोन करेगा। हमने कहा आपको कैसे पता, हमने कभी नहीं बताया। फिर पता चला जब वो शुरू में मधुबन आया था तब उसने 2 प्रश्न पूछे थे। जब कोर्स करा रहे थे तब पूछा था आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और मधुबन में कब तक रहते हो, ये 2 पूछा था। उससे उसने गिनती किया, इसकी पढ़ाई इतने साल यहाँ, तो जरूर इस डेट पर इसका जन्म तिथि है, और उसी डेट को फोन करता अफ्रीका से। तो ऐसे भी लोग हैं, तो सब जानते हैं, लेकिन विचित्र है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यह देखा या यहां बोला, यहां ही बोला मैंने, नहीं, ये विश्व की स्टेज है। लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार में पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में आता है, अभी मधुबन में मैं नहीं हूं, बाबा मधुबन के घर से सुन रहे हो, बाबा के घर से सुन रहे हो, बाबा की मुरली सुन रहे हो, तो बाबा याद रहता है। तो मधुबन भी आएंगे ना, मधुबन का बाप है, बाबा है, तो मधुबन तो आएगा। मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबके नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है, मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा उमंग उत्साह, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए,
सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और आदिलाबाद और करीमनगर, हैदराबाद, सारे विश्व के बाबा के नूरे रतन दिल तख्त नशीन अनमोल रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। रूहानी माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। बाबा को धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी। अगर कर्म करते समय बाबा की याद है, मैं शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार बाबा से बात करते करते, ज्ञान का चिंतन करते करते हो, कर्मयोगी प्रत्यक्ष खुशी भगवान के साथ हो। कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाले बाप दादा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले हैं। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसे कर्मयोगी आत्मा हो। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। कोई भी काम करो, गाड़ी चलाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो लो, वॉकिंग करो, तो बाबा से शुभ बाबा को जानते हो, उनकी शक्तियों को जानते हो, उनके ज्ञान को जानते हो, उनका चिंतन करते रहो, उनसे बात करते रहो। तब कहेंगे सदा खुशी शक्तिशाली, मायूस ये चेहरा उदासने लगेगा। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, मैं मेरा नहीं, बेहद शुभ बाबा की है, विश्व की आत्माओं की है, इस व्यक्ति की नहीं, शरीर को नहीं, ये व्यक्ति ने कहा, इसने कहा नहीं, शुभ बाबा के यज्ञ की सेवा। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः ही आत्मा में शक्ति और खुशी। अगर आपको लगता मैं शुभ बाबा की सेवा कर रहा हूं, आदिलाबाद की नहीं, करीमनगर की नहीं, सिर्फ बाबा के बच्चों की नहीं, शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार, शुभ बाबा के नियम मर्यादा के अनुसार शुभ बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो शुभ बाबा की हो गया ना। शुभ बाबा बेहद का, हद का नहीं, किसी एक थोड़े लोगों के लिए नहीं। तब बाबा कहता है, जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर याद है शुभ बाबा की सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः ही आप में आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे हो, मधुबन में बैठे बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। एक स्थान पर रहो,
और बेहद की सेवा। सारे विश्व की आत्माएं, अभी कितने लोगों को जाएगा है, कितने लोगों को मिलेगा, तो बैठे एक जगह पर, है ना। तो इसके लिए आज का वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब योग में बैठते हो या कभी भी अगर सर्वशक्तियों का अनुभव करते हो, सर्वशक्ति कौन सी? पवित्रता का सागर है शिव बाबा, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये मुख्य 8 शक्ति है। अगर ये शक्ति पता आपको, तो ये शक्ति का चिंतन करते रहते हो, कंपेयर करते हो, बाबा में ये शक्ति है, मेरे अंदर कौन सी है, तो क्या होगा? शक्तियों का चिंतन चलता है, तो कर्म भोग का चिंतन नहीं चलता है। शरीर का दर्द वर्णन करेंगे, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये किसने किया, या ऐसा हुआ, नहीं। बाबा मैं आपका बच्चा, आपके जैसे मैं पवित्रता का सागर का बच्चा बनूं, मैं आपके जैसे सारे विश्व का कल्याण करने योग्य बनूं। तो ऐसे चिंतन करते शरीर का दर्द सब भूल जाते हैं। तो क्या होता है? अच्छे विचार अच्छे सेल्स को एक्टिवेट करता है, जागृत करता है। तो इसलिए अच्छा सोच चाहिए। तो शक्तियों की सोच करो तो शक्तिशाली बनेंगे। तब बाबा कहता है जब कर्म भोग का जोर होता है, बहुत दर्द करता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश हो जाती है, तो उस समय अगर ये आदत चाहिए, अपने तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय हर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले। कैसे करेंगे? दर्द कर रहा है, सोएंगे आप जाके। हमने एक दिन देखा, बहुत सिर दर्द कर रहा था, कहता आप भी योग नहीं करता है, बैठ ही नहीं सकता है। तो नहीं, योग में बैठना है। शाम के समय वॉकिंग करके आया, स्नान किया, ठंडा लगा कि सिर दर्द करने लगा, तो बैठते ही आप जैसे विधि आपको बताया, आत्मचिंतन करते रह गया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। शिव बाबा 5 मिनट के अंदर 1 घंटा बैठा। कहानी नहीं बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ कि कर्म योग से कर्म भोग क्या है। अभी शरीर के चिंतन है, भान है, तो उसका दर्द महसूस होगा। अगर एक बार मन बुद्धि चलने लगी, वो चलना मुश्किल होता है। पहले उमंग उत्साह चाहिए, नहीं मुझे बैठना है, बर दर्द होने दो, कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, दांत दर्द होता है, कान दर्द होता है, नहीं ऐसा नहीं, तो करके देखना। लेकिन विधि चाहिए, ऐसे योग में बैठे योग नहीं लगता है। मन दर्द महसूस करने वाला बुद्धि है, तो मन बुद्धि को बिजी करना। मैं कौन पूछो, मेरा रूप क्या है पूछो, ये दोनों एक बार अगर चलने लगे, बस तब आपको दर्द, तब उसको कहा विजय प्राप्त करना। कर्म भोग के कर्म योग में परिवर्तन करने वाले अपने आप नहीं होगा, विधि चाहिए। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगने वाली ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। तो हम देह के बहाने रहते हैं, देह से चलने का अभ्यास। ये जो है ना 5 प्रश्न बताया, ये आत्मचिंतन कम से कम रोज 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चाहिए। शरीर के विचार ही नहीं आना है, तब कहना आप देही अभिमानी। 5 नाम है, आत्म अभिमानी, है ना, ऐसे अलग अलग नाम है। तो कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हो। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास करो। यह वस्त्र दुनिया की
स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान चाहते हो प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी, सबका मान चाहिए। निर्माण कहने में आता है, हर एक को मान शान तो चाहिए, थोड़ा सा गलत शब्द बोलो तो तुरंत डिस्टर्ब होता है ना। इट इज ह्यूमन एटीट्यूड, नेचर है। तो वो निर्माण मुझे किसी से नहीं चाहिए, ये बार बार अपने को समझाते रहो, तब होगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। समझ में आया?